جب اپوائنٹمنٹس کی بات آتی ہے، چھوٹے چھوٹے جماعت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کسی کو پوچھو بیت الخیال کے مکھی کامڑیا بنو گے تو فوراً کہہ دیتے نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ 5-12 سال کا بنا دو، چاند رات کا بنا دو، لیکن اٹ از ویری ٹف، اٹ از ویری ٹف. میں نہیں کہہ سکتا. تو بچپن سے ہی میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بیت الخیال عبادت بہت مشکل ہے. اور اگر یہ واقعی بہت مشکل ہے تو امام ہم کو کیوں دیتا ہے؟ پیروں نے ہمیں کیوں کہا کہ آپ عبادت کرو، بندگی کرو؟ اور نہ جانے کیوں جہاں عبادت کا نام آتا ہے، جہاں بندگی کا نام آتا ہے، جہاں صبح اٹھنے کی بات آتی ہے، رات سے ہی ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ہم سے تو نہیں ہوگا. معاف کرنا، کبھی کبھی جب خوشحالی ہوتی ہے 2 بجے تک ڈانڈیے کھیلتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم 4 بجے تک کھلاتے ہیں، آپ وہاں سے جماعت خانے آ جائیں تو آپ دیکھو آدھے سے زیادہ جماعت چلی جائے گی. اس لیے کہ سب کو دل کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ عبادت، بندگی، بیت الخیال یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہر آدمی عبادت نہیں کر سکتا. اگر یہی بات ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر کون سا کام آسان ہے؟ نہیں کرنا ہو تو ہر کام بڑا مشکل ہے. ایک چھوٹے بچے کو اگر خدا زبان دے دے تو اس کو پوچھو کہ واک کرنا، چلنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ بچہ چلتا ہے تو گر پڑتا ہے، اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے. لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو واک کرنا کیا، وہ تو دوڑنے لگتا ہے، لیکن بچپن میں اس کو چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو دنیا کے اندر کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. کوئی بھی کام. پیسہ کمانا آسان ہے، چلیں آپ یہ دیکھ لیں، اور وہ بھی اس دیش کے اندر. اٹس ویری ٹف، رائٹ؟ لیکن باہر والوں کو کیا ہے کہ امریکہ کے اندر تو ڈالروں کے درخت لگے ہوئے، بس ہاتھ بڑھاؤ اور ڈالر توڑ لیں. اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. اور پھر ایجوکیشن کی بات کر لیں. ایجوکیشن کی ڈگری لینا آسان ہے؟ ایک چھوٹا بچہ اسکول تو جانا ہی نہیں چاہتا، بیبی سٹنگ میں جانا نہیں چاہتا، مونٹیسری میں جانا نہیں چاہتا، لیکن پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ویلیو کیا ہے. اور آج یہ نہیں سمجھتا، فیوچر میں اس کو پتا چلے گا کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے. تو ماں کبھی کبھی اس کو پٹا کر، کینڈی دے کر، کبھی کبھی غصہ کر کے بھی اس کو مونٹیسری میں چھوڑتی ہے. حالانکہ بچہ روتا ہے، ماں کا دل ہل جاتا ہے، لیکن ماں سیکریفائس دیتی ہے کہ نہیں، بچے کا وہیں فیوچر برائٹ ہے، تو وہ بچے کو وہاں بھیج دیتی ہے. لیکن بچہ نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سیاٹل کی جماعت تو پروفیشنل. اتنا ایزی ہوتا تو یہ جماعت پروفیشنلز تو نہیں ہوتے اتنی زیادہ. لیکن دنیا کے اندر کوئی کام کرنا آسان نہیں ہے. اگر نہیں کرنا چاہتے، ہمت نہیں کرنا چاہتے، تو ہر کام ٹف ہے، ہر کام ہارڈ ہے. یہاں امریکہ کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ کار کے بغیر انسان پیرالائز ہے. اور اٹ از ٹرو کہ کار نہیں ہے تو انسان پیرالائز ہے. میں ایک سٹیپ آگے اور بڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں کار ہو لیکن کار چلانے نہیں آتی ہو، ڈرائیور لائسنس نہیں ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو جب جسٹ امیجن کہ جب ہم فرسٹ ٹائم اسٹیئرنگ پہ بیٹھے تھے اور فرسٹ ٹائم اب جب ڈرائیو کر رہے تھے، ہماری پوزیشن کیا تھی؟ کوئی کہہ رہا بریک لگاؤ تو ہم نے دبا دیا ایکسیلیٹر، کسی نے کہا رائٹ کرو تو ہم نے کر دیا لیفٹ، کسی نے کچھ کہا، ہمارا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، ہمیں لگا بھی، ہماری گاڑی بھی ٹوٹل ہو گئی. لیکن کیا ہم نے گیو اپ کر دیا؟ نو. کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم کو لگا ہم شاید ہاسپٹلائز بھی ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو ٹکٹ بھی ملی ہو یہاں پہ، لیکن وی ناٹ گیو اپ.
वी कंटिन्यू कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर हम स्टैच्यू बन गए हैं थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं, और वी कंटिन्यू ट्राई टू ड्राइव अवर कार। और फिर आहिस्ता 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 जब हैबिट हो गई, जब आदत हो गई, तो अब तो पोजीशन ये है कि हाईवे पे गाड़ी चल रहे हैं और बाल बना रहे हैं। क्योंकि शुरू में जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक मर्तबा वो गाड़ी चलाना सीख लेता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह बंदगी इबादत है कि जिसको बंदगी के अंदर बैठना नहीं है, जो इंसान दूर भागेगा, उसके लिए बंदगी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बंदगी करता है, जो इबादत करता है, जो उठने की आदत डाल देता है, उसके लिए इबादत बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। और जैसे कभी कभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो लोगों को जब हम पूछते हैं कि भाई सुबह जमात खाने आते हो, कभी कभी मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो कहते हैं अरे मिस्टरी साहब, कौन से देश में रह के बात कर रहे हो, ये इंडिया पाकिस्तान या अफ्रीका थोड़ी है, यहां शाम कोई जमात खाने में आ जावे तो बहुत बड़ी बात है, आप सुबह की बात करते हो, क्यों भाई सुबह नहीं आ सकते? नो, इट इज वेरी टफ। आपको पता है यहाँ की लाइफ तो मशीनरी की तरह है, बस वो जैसे कंप्यूटर के अंदर सारा प्रोग्राम फिट कर दिया होवे कि सुबह इतने बजे उठना है, रश करना है, भागना है, जॉब पे जाना है, दोपहर हुई लंच किया, शाम को आए थके हुए हैं और बस सो जाने की बात है। जब बस सो जाने की बात है तो यहां बहुत मुश्किल है श्री साहब सुबह इबादत बंदगी करना। मौलाना हज़रत इमाम का फर्स्ट फरमान आई थिंक सो पेरिस जमात के लिए, और आपको पता है कि हमारी जो पेरिस जमात थी वो उस वक्त हम कह सकते कि मोबिल जमात थी, यानी अभी अभी नई नई आई थी पेरिस के अंदर, उसको पता नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, यहाँ सेटल होंगे कि नहीं होंगे, कहीं और जाना होगा, यानी इट इज़ वेरी टफ। क्योंकि मोबिल जमात होती है, उसका कोई अभी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हुआ कि मुझे इधर सेट होना है कि इधर सेट होना है। ऐसी जमात के दरमियान हज़रत इमाम ने फरमाया, रिटर्न फरमान है, शायद यहाँ पर भी होगा, पढ़ा भी जाता है कई मरतबा, मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया मुझे पता है कि ये जमात मोबिल जमात है और तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है कि तुम सुबह शाम जमात खाने में आओ, लेकिन फिर भी मैं फरमान करता हूं कि तुम्हें इबादत के लिए सुबह जमात खाने आना चाहिए। हज़रत हम समझते हैं कि इट इज़ वेरी टफ मोबिल जमात के लिए, अभी जो सेटल नहीं है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है सुबह शाम जमात खाने आने के लिए, लेकिन फिर भी हज़रत हम फरमाते हैं मैं फिर भी कहता हूं कि तुम्हें सुबह इबादत में के लिए आना चाहिए। क्यों मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब क्या है कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हम बहुत थके हुए हैं, हमारा दिमाग थका हुआ है, सुबह से शाम तक हमने काम किया है, बच्चों के लिए दौड़ भाग है, और ख़ास करके इस देश के अंदर जो लेडीज़ है उनको तो डबल सेक्रीफाइस देना है, डबल कुर्बानी देनी है, घर का भी काम करना है, हस्बैंड को अर्निंग के लिए भी हेल्प करना है, बच्चों को भी संभालना है, तो बहुत ही ग्रेट यानी बहुत बड़ी हैवी ड्यूटी उसके शोल्डर पर है। इतने थक गए हैं ना, फिर भी इबादत करनी चाहिए। हमारे पीरों ने बड़ा कमाल किया एक्चुअली। बड़ी हैरत की बात थी कि हमारे जो पीर थे वो उस जमाने के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट मैं कहूं, ऐसी ऐसी साइकोलॉजी यूज की और ऐसा कन्विंसिंग मटेरियल दिया कि आज अगर हम बैठकर सोचते हैं तो वी सरप्राइज के उस जमाने के अंदर पीर ने ये रचा है। ऐसा लगता है जैसे आज अमेरिका के अंदर बैठकर पीर ने ये कलाम रचा हो, लेकिन वाकई कमाल किया। तो पीर का एक गिनान मेरा बड़ा फेवरेट गिनान है, मैं अक्सर उस गिनान के ऊपर वाज करता रहता हूं, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। उठी अल्लाह ना घुरे बंदा तो सुते सजी रात,
बड़ा अच्छा सिंधी का गिनान है। इसकी जो चौथी और पांचवी जो कड़ी है वो मैं आपके सामने बताता हूं, कितनी बेस्ट साइकोलॉजी यूज की है, लॉजिक भी आप कह दें। पीर ने फरमाया, कपातिये कतियो यारा जदे सुतो लोक। ऊपर से चली गई होगी बात, क्योंकि प्योर सिंधी वर्ड। कपातिये कतियो यारा जदे सुतो लोक। कपाती है ना, उस औरत को कहते हैं हमारे देशों के अंदर कि जो कॉटन होता है ना, रुई, उसको साफ करने वाली, या गुजराती में हम कहते हैं रू पिंजण वाली, रुई को साफ करना। इन्हें जो कॉटन होती है, जब वो ट्रीज में से, दरख्त में से निकाली जाती है तो उसके अंदर बहुत कचरा होता है, तो उसको साफ करनी पड़ती है, तो रूह को पिंजना पड़ता है, रूह को, कॉटन को साफ करना पड़ता है। तो फिर माँ बाप फरमाते हैं कि एक कपाती, एक रूह को साफ करने वाली औरत रूह को साफ करने के लिए बैठी। कपाती कतियो यारा जदे सुतो लोग, कि वो रूह को साफ करने के लिए बैठी है। लेकिन जस्ट इमेजिन, यानी आप 600-700 साल पहले जाइए कि उस जमाने के अंदर औरत के ऊपर, जैसे आज अमेरिका के अंदर औरतों के ऊपर, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे उस जमाने के अंदर भी घर का काम करना, और आप जानते हैं सारा काम हाथ से करना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, एवरीथिंग, और सारा काम करते 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 वो औरत थक जाती है। लेकिन फिर भी वो रूह को साफ करने के लिए उठती है। कभी जदे सुतो लोग, जब सारे लोग सो गए, रात हुई, सब लोग सो गए, तो ये आराम से उठती है और रूह को साफ करने बैठती है। अब वो धुन होती है ना, इंसान किसी चीज में बहुत ही इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता डे और नाइट का, उसको पता नहीं चलता हंगर क्या चीज है, उसको पता नहीं चलता कि थर्स्ट क्या चीज है, भूख प्यास नींद सब भूल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो ये औरत भी उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और तेनी पेंजे कतियो या कपाती कतियो यारा जदे सुतो लोग, कि ये औरत जब ये काम करने बैठती है, तेनी पेंजे कते विंदो गिचिय गाड़ो तोक। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ मिशनरीज हैं वो डिफरेंट उसकी माना बताते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इमाम का फरमान भी है कि हमारे एक फरमान की लाइन की हजारों हजारों माना होती है। तो हो सकता है कि दूसरा मिशनरी दूसरी माना भी बताए, लेकिन मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। कि किसी ने कहा कि यहां पे गाड़ो तोक नहीं है, तोक का मतलब है गर्दन। गर्दन यानी उस जमाने में क्या था कि औरतें जो है वो स्कार्फ पहनती थी, तो कहते हैं कि वो औरत ने रूई को साफ किया और उसका कपड़ा बनाया, और उसका कपड़ा बना के स्कार्फ बनाकर गले में डाला। दैट्स ऑल्सो ओके, ये भी सही। लेकिन कहीं लिखा गाड़ो थोक, थोक की माना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहरहाल दोनों माना अपनी जगह पर है। तो क्या कहा कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई और उसने काम करना शुरू किया, यानी वो रूई को साफ करना शुरू किया और बहुत सारी साफ कर डाली, गाड़ो थोक बहुत सारी। अब क्या हुआ, सुबह हुई, चादर ले ली, सारी रूई को अंदर डाल के गठड़ी बना ली, उसने गठड़ी बनाई, और सुबह उठी तो जो उसकी फ्रेंड्स थी ना, उसके दरमियान से प्राउड होके, प्राउडली वो पास होती है, जैसे मन मन में कहती हो ना, देखा तुम लोग सोते रहे, मैंने देखो कितनी सारी रूई साफ की, मैंने कितनी सारी रूई साफ की। अब फर्ज करें कि वो लेकर गई। पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि थकी हुई है, नींद है आंखों में, दिमाग थका हुआ है, कैसी साफ करेगी। यानी आपको भी नींद आ रही हो, बहुत थके हुए हो, और मैं आपको कुछ अकाउंटिंग का काम दे दूं, आप कैसा करोगे? डेबिट को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट को डेबिट कर दोगे, पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है, आपने दिखा दिया लॉस, बिकॉज यू आर टायर्ड,
آپ بہت ٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو آپ کا کام کیسا ہوگا؟ جیسا تیسا۔ تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھئی جیسا تیسا بھی اس نے روئی صاف کیا، جھیڑو نی ٹیڑو اگیو یارا ہند کتی آئی، جیسی تیسی بھی روئی صاف کی، بھلے خراب کی، تھوڑی اچھی کی، لیکن کی تو صحیح، کی تو صحیح۔ تو کہا کہ کیا ہوا کہ وہ گٹھڑی بنا کے اپنی فرینڈز کے درمیان سے گزرتی اور کہتی بھی جاتی، دیکھا کتنی زیادہ میں نے روئی صاف کی۔ اب فرض کریں فار ایگزامپل وہ کوٹن کی دکان پہ گئی، اس آدمی نے گٹھڑی کھولی اور کہا اتنی خراب روئی لے کر آئی ہو، میرے کام کی تو نہیں ہے، یہ تھوڑی سی میرے کام کی ہوگی، میں اسپلٹ کر لیتا ہوں، میں نکال لیتا ہوں میرے کام کی۔ فار ایگزامپل 40 پاؤنڈز وہ صاف لے کر گئی، اس نے کہا میرے کام کی صرف 1 پاؤنڈ ہے، 39 واپس لے جا۔ 39 وہ واپس لے کے جاتی ہے، دوسرے دن واپس 40 پاؤنڈز لے کر بیٹھتی ہے، صاف کرنے بیٹھی۔ فرسٹ ڈے تو 1 پاؤنڈ ہوا، سیکنڈ ڈے بھی چلو 1 پاؤنڈ، تھرڈ ڈے بھی 1 پاؤنڈ، فورتھ ڈے تو کچھ انکریز ہوگا نا، کچھ تھوڑا سا 1¼ ہو جاوے، ففتھ ڈے آہستہ آہستہ 1½ ہو جائے گا، پھر 2 پاؤنڈ ہو جائے گا، پھر 3 پاؤنڈ ہو جائے گا، پھر تو اس کی ایسی ہیبٹ ہو جائے گی کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل صحیح پڑے گا، بھلے نیند آ رہی لیکن اتنی ہیبیچول ہو گئی اس کے اندر کہ اس کا ہاتھ صحیح پڑ رہا ہے، پھر تو 40 پاؤنڈ لے کر بیٹھے گی تو 40 کی 40 صحیح صاف کر لے گی، 40 کی 40، کیونکہ اب تو اس کی عادت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح پھر ماں باپ یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ اے دیندارو، چاہے تم تھک چکے ہو، چاہے تمہاری حالت خراب ہو یا تمہارے دماغ کی حالت خراب ہو، یو فیل ویری ٹائرڈ، لیکن اٹھو، بیٹھ جاؤ بندگی میں، بھلے جیسی تیسی ہو، بیٹھ جاؤ۔ میں تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ نیند بھی کرنی ہو نا تو بھلے جماعت خانے میں آ کے کرنا۔ مکی کامڑے شاید مجھے ڈانٹیں گے کہ یہ کیا اپنے سونے کی بات کر لی، لیکن میں کہتا ہوں کہ زندگی کے وہ پل مولا کے گھر کے اندر گزر جائے وہ بھی بہتر ہے۔ تو آ کر بیٹھ جاؤ، نیند آ رہی ہے سو جاؤ، بھلے آنکھ لگ جائے تو سو جاؤ، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے پھر شروع ہو جاؤ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، پھر نیند آ جائے بھلے سو جاؤ، پھر آنکھ کھلے پھر شروع ہو جاؤ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہیبٹ آہستہ آہستہ پڑے گی۔ آج اگر 1 گھنٹے کی عبادت میں، 1 گھنٹے کی عبادت میں، آدھا گھنٹہ نہیں، 15 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں، میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 پل، 1 لمحہ، 1 مومنٹ اگر وہ جام دل کے اندر اتر گیا، واللہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ 1 لمحہ، 1 سانس، تو اگر وہ جام آج اگر 1 لمحے کے لیے میرے دل کے اندر اتر گیا، میرا بیڑا پار۔ پھر آہستہ آہستہ روز تھوڑی 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 بندگی کرتے 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 ایسی عادت ہو جائے گی، ایسی عادت ہو جائے گی کہ 24 گھنٹے ہمارا وقت عبادت میں گزرے گا، ہمارا وقت عبادت میں گزرے گا۔ ہم دنیا کا کام کرتے ہوں گے تو بھی ہمارا جو روح ہے، ہمارا جو سول ہے، ہمارا جو ہارٹ ہے وہ امام کے ساتھ لگا ہوا ہی ہوگا۔ ہاتھ وچ کام تے منہ وچ نام، کہ ہاتھ سے دنیا کا کام ہو رہا ہوگا لیکن دل کی زبان پر مولا کا نام ہو رہا ہوگا۔ یعنی جہاں پر بھی جائیں گے ہم مولا کے ساتھ ساتھ ہی جائیں گے۔ جیسے کہ مولا نے پیر صدر دین کے متعلق فرمایا کہ پیر صدر دین جنگل میں جاتے تھے تب محسوس کرتے تھے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم بھی جب کام پہ جائیں گے، کہیں پر بھی جائیں گے، we feel کہ مولا ہمارے ساتھ ہے۔ تو 24 گھنٹے ہماری عبادت کے اندر گزریں گے، 24 گھنٹے ہمارے عبادت کے اندر جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کالجز میں گئے ہیں، آپ یونیورسٹی
यूनिवर्सिटी में गए हैं, एट ए टाइम आप दो काम कैसे कर सकते हैं? एक ही वक्त के अंदर दो काम करने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है, दुनियावी तौर पर भी नहीं है। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तब आप टेलीफोन पे भी तो बात करते हैं, सेल फोन पे भी बात कर रहे हैं, बात भी हो रही है, गाड़ी भी चल रही है, और कोई अच्छा म्यूजिक है तो म्यूजिक भी सुन रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव हो रही है। तो दो काम एक साथ हम कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर भी दोनों काम एक साथ भी होते हैं, क्योंकि इसको इंटेंसिवली करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद ये काम होगा। जैसे हम अक्सर कभी कभी जब कोई मूवी देखते हैं, इंडियंस मूवी या पाकिस्तानी ड्रामे, तो आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाती हैं, तो दो तीन घड़े हैं, एक घड़ा, फिर उसके ऊपर घड़ा, फिर हाथ में घड़ा, और दो चार औरतें हैं। और औरतें जब मिलेगी डेफिनेटली बातें भी होंगी, तो बहुत सारी बातें भी हो रही है, हंस रही भी है, कह कहा भी लगा रही है, बहुत इंजॉय भी कर रही है। लेकिन उनका ध्यान कहां है? उनका ध्यान ऊपर है, उनका ध्यान ऊपर है कि पानी छलक न जाए, घड़ा गिर न जाए। इसी तरह इंसान जो है वो इसी तरह से रहता है कि तेनी सुरती आकाशे जाए, तेनु पिंड चाले मुत्रिय लोकमा अने सुरती आकाशे जाए। तो ये जो पिंड है, ये जो इंसान का जिस्म है, वो इस दुनिया में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी सुरती आकाश के अंदर होगी, यानी मौला के साथ लगी हुई होगी। और यही मौला कहता है कि मैं तुम्हारा धन और तुम्हारा पैसा या तुम्हारी दौलत नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। दिल उसको दे देते हैं तो ये हालत हो जाती है, ये कैफियत हो जाती। एक उर्दू का शेर है, समझने वाला, थोड़ी टफ उर्दू है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो कितनी अच्छी बात कही। कहता है कि दुनिया के मशगलों में भी, दुनिया के मशगलों में भी वो बाखुदा रहा। मशगलों कहते हैं एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट, और बाखुदा मीन्स विथ गॉड, खुदा के साथ। क्या कह रहा है कि वो दुनिया की एक्टिविटीज में भी खुदा के साथ रहा, खुदा से अटैच रहा। फिर दूसरी लाइन क्या कहता है? वो सबके साथ रहा, फिर भी सबसे जुदा रहा। हाँ? हमारे साथ बैठा हुआ होगा, हमारे साथ बातें कर रहा होगा, बट ही इज ए फिजिकल हियर, वी डोंट नो वेयर ही इज इन स्पिरिचुअल वे। वो कहाँ है? वो तो खुदा के पास है, उसकी आत्मा तो खुदा के पास है, उसका ताल्लुक तो खुदा के पास है। वो हमको यहां बैठा हुआ नजर आ रहा है, यहां बैठा हुआ है, मेरे से बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो मुझसे जुदा है। वो तो कहां पहुंचा हुआ है? बहुत ऊंची, बहुत बुलंद जगह पर पहुंचा हुआ है। तो वो दुनिया की एक्टिविटीज, दुनिया की जितनी भी इंसान की बिजी लाइफ है, उसमें भी वो विथ गॉड रहता है, खुदा के साथ रहता है, और फिर सबके साथ रहता है। बीवी भी है, बच्चे भी है, माँ बाप भी है, बहन भाई, अड़ोस पड़ोस सब है, सबके साथ रहता है। लेकिन हकीकत में वो सबसे जुदा है, सबसे अलग है, क्योंकि वो पहुंचा हुआ है। तो इस तरह जब इंसान आता है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत बरकाते और नियामतों की बारिश हो जाती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि डोंट वरी, फिक्र मत करो कि नूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो आकर कहता हूं मौला के दरबार में आकर बैठ जाओ, मौला के दरबार में आकर बैठ जाओ। उसके दरबार में आकर जब इबादत बंदगी हम करते हैं और करेंगे, तो हो सकता है हमारी जमात में से कोई भी एक आदमी भी पहुंचा हुआ होगा और उसके ऊपर मौलाना हज़रत इमाम की बरक़ात और रहमतें नाजिल हो गई, उसका असर हमको भी होगा, उसका फायदा हमको भी होगा, और हम भी उसकी वजह से कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जब इंसान इबादत करता रहे, बंदगी करता रहे, तो यकीनन उसका फायदा उसकी आत्मा को, उसकी रूह को पहुंचता है। और फिर वो है ना, उसकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है, काफी चेंज। यानी
आप यूं कहिए कि कभी भी हम उस वे से नहीं सोचते। लेट मी गिव वन एग्जांपल एंड देन आई कंप्लीट माय वाज। मैंने घड़ी अभी देखी। एक आदमी, जैसे आज हम कैटरिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग कैटरिंग करते, तो उस जमाने के अंदर भी एक आदमी जो है वो कैटरिंग करता था। कैटरिंग मीन्स वो फूड बनावे, सालन रोटी बनावे और सालन रोटी बनाकर बेचता था। लेकिन एक अजीब सी उसकी आदत थी कि जिसके पास भी खोटा सिक्का होवे ना, यानी ओरिजिनल सिक्का नहीं, खोटा, कोई भी जिसके पास भी होवे ना, कहीं दुनिया के अंदर कैश नहीं हुए, बोले इसके पास चला जाइए कैश कर देगा। ठीक है, उसके पास जावे, सालन रोटी लेवे और खोटा सिक्का पकड़ावे, वो लेके गले में डाल देवे और फिर जो भी चेंज है उसको वापस दे देवे। तो लोगों को बड़ी हैरत होवे कि कमाल है, जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये गलत कॉइन है, इट इज अ रॉन्ग कॉइन, फिर भी ये क्यों एक्सेप्ट कर लेता है। तो किसी ने कहा कितना पागल आदमी है, बेवकूफ, इतने मेहनत करता है, लोग इसको कॉइन देते हैं और ये ले भी लेता है। बहरहाल क्या हुआ कि जब इस तरह से उसकी लाइफ गुजरती रही और फिर जैसे ही उसका आखिरी वक्त आया और मलिकुल मौत सामने खड़ा है, रूह निकालने वाला है और बस आखिरी लम्हा है, तो ऊपर देखकर खुदा से कहता है, खुदावंदा देख, सारी जिंदगी तेरे जितने भी बंदे थे ना, उसके खोटे कॉइन मैंने वापस नहीं किए। मेरी सारी जिंदगी में मैंने तेरे बंदों के खोटे कॉइन जो थे ना, मैंने वापस नहीं किए, मैंने रिटर्न नहीं किए। खुदावंदा आज मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरी खोटी बंदगी भी वापस मत करना, मेरी खोटी बंदगी भी तू एक्सेप्ट कर लेना, मेरी कमजोर बंदगी को भी एक्सेप्ट कर लेना। और हज़रत इमाम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, मौलाना हज़रत इमाम ने लंदन में जो बैतुल ख्याल का फरमान फरमाया, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा फरमान, ऐसा एसेंस वाला, बिल्कुल क्लियर कट। हज़रत इमाम ने फरमाया, जस्ट सिट इन बंदगी इज ऑल्सो ग्रेस। खत्म हो गई, सारे चैप्टर बंद कर दें। कि हज़रत इमाम ने फरमाया, खाली इबादत करके आकर बैठना ही रहमत है। कामयाबी मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है, नींद आती नहीं आती वो भी छोड़ दें, लेकिन खाली आकर बैठ गए, मौला ने